Okay. Good evening, all. This is Arihant Rajesh. Most of you all know me already, and few people are new to this demo through the WhatsApp invitation or the WhatsApp group. Today, we are here to discuss about the course, what we are conducting, what we are going to conduct in 3rd March 2022, which we are going to start. And this course is exclusively for 60 days. Okay, so we will discuss about the course in some time, but I would like to tell you, something about the importance of numerology, the importance of graphology, the importance of signaturology, what I call signaturology, and the importance of vibrations of your name, the importance of numbers in your date of birth, the importance of pronology or the name pronunciation, what we call it as. So we will talk about those things in the today's demo. It is going to be very short and sweet demo. And after that, if you have any questions, I will definitely answer your queries. Okay. So let us start today's demo without wasting up the time. And first of all, I thank you each and everyone to for joining this demo at your personal time and taking some time and joining the demo. I really thank each and every one of you. Okay, so before we proceed, how many of you know the anatomy of your name? Anatomy of your name. If anybody is having idea, you can just raise your hands or thumbs up, whatever it is. If anyone is having any knowledge, fine, no problem. See, anatomy of the name is nothing but the structure of your name. So it is bifurcated into three divisions. One is your first name, other one is middle name, and other one is surname. So these three things plays a very, very important role in your life. And this applies to your name. This applies to your signature as well. यूजुअली हम गलती क्या करते हैं पता है आप लोगों को? गलती हम ये करते हैं कि नाम तो हम लोग करेक्शन कर लेते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी, कुछ डबल आर किया, डबल के किया, डबल एम किया, जो भी हम लोग किए, उसके बाद में ना हम लोग सिग्नेचर चेंज नहीं करते. दिस इज द मेजर चैलेंज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन मेनी पीपल. अगर आप सिग्नेचर चेंज नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलना मुश्किल है, क्योंकि आपका नाम से ही आपका सिग्नेचर बनेगा. ठीक है, तो जब आप पुराना सिग्नेचर करोगे जो पुराने नेम से है, जो करेक्टेड नहीं है, और नया नाम से आप लिखते हो, और मे बी यू डिस्प्ले इन ए सोशल वेबसाइट्स लाइक Facebook, Twitter, or anything as such. So it doesn't give you any bigger result in your life. कुछ मिराकल होने वाला नहीं है आपके. ये जो एनाटॉमी है, ये एनाटॉमी को आपको बिल्कुल फॉलो करना ही. तो एनाटॉमी में हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि what is the likes, dislikes, wants of that particular person. What he wants, what he is expecting, what he want to display about himself. Number two, whether he is a emotional person or not. How many of you write initial in your signature or your name? Initial or the full name in your signature, or maybe in your complete name. I could see two people here now, KP Manjunath and Prakash V. Yes, I could say two people here, right? So people who are mentioning their surname within their name or probably within the signature, these people, like their mother, they are emotional people. And those who are writing the complete name as complete initial, these people are emotional, as well as they like their profession to display. They like their profession, no matter whether they are into service or maybe into business. They like to showcase in the public that yes, I'm proud of this job, or maybe I'm proud of my business, whatever I'm doing it, and I'm proud to let you all know that I'm doing so and so job, or I'm doing so and so thing. Okay. Likewise, when you do your name corrections, you should also do the correction of your signature. This is mandatory. Okay. जैसे कि I could see Prakash V. So Prakash जी, आप अपने signature प्रकाश V करते हो या तो फिर कुछ अलग सा करते हो?
I write my complete name along with my initial. Along with your initial. So initially you're going to write it as V, or you're going to elaborate the V also. V in the last. Okay. Only V in the V last. V in the last. Prakash will be in the first. Prakash will in the first. So you are you're like a person that you want to create your own identity. खुद का identity मतलब पाने की कोशिश करते हो, ठीक है ना? And Okay. as I said, when you mention your initial, I don't know why you have mentioned, probably to balance your name to some particular number, or just like that you might have mentioned it. When you See, mention your, sorry, the thing is, I started signaturing my complete name. Initially, when I started as my career, as my signature wants some application needs my signature, from the day one, it has been my complete name has been taken for the signature. but the thing is, your name is landing on name number 28, Prakash V. Okay. Okay. Prakash My V date of is birth landing is on 28. also, my date of birth is 10/7/1975. It is 10/17, 10/7. 10/7/1975. 19, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33. Okay, fine. So it is going to be 1 and 3, 1 born and 3 destiny. Okay. Okay, 1 born and 3 destiny. But knowingly or unknowingly, Prakash V, whatever you have corrected, it is landing on 28. Okay. That is okay, No, no. or I need to change it. 28 is a struggling number, sir. Okay. So what I was saying is 28 is a struggling number. Okay. So Prakash, this actually the name is starting with P, which makes you little lazy, and it actually creates delays in your work, and you need to struggle hard in your life. I mean, success will not come that easily in your life. No, my signature is spelled with HEMPRAKASH, then the initial V. Okay. So you write your name separate and signature separate. No. My full name or my name is HEMPRAKASH. Achha, M Initial is the Prakash. V. Hem Prakash V is the name. Okay. M Prakash, what you are going to write? HEMPRAKASH. Okay. There is a space and V as an initial. Right. Fine. So since how long you are maintaining this name, sir? M Prakash? It's been not changed from high school days. Okay. Right. M Prakash V. But you know what, sir? You are a 1 born and 3 destiny, and Yeah. unknowingly you have activated number 6 in your life. How can you please give a hint or a brief on that? You told your date of birth is 10th. 10/7/1975. Correct. So you are 1 born and 3 destiny. Okay. So you are a Okay. 1 born and 3 destiny. For 3 destiny, Okay. 6 is unlucky. And you have landed up your name, Hem Prakash V, on 42, which is 6. Okay. Which is creating a lot of issues in your life. You have enhanced a negative number in your life. Okay. Okay. So you are not supposed to enhance the negative energy, because it will not give you a fruitful results. That is a different story. But you will miss a lot of opportunities in your life. Okay. Okay. So you should avoid 6, because 6 is not lucky to you. 1 and 3 are your lucky combination. So you should follow that. So you will have to do some kind of changes in the name. Okay. Okay. So probably by the end of this demo, you will get more insights on that. Don't worry. Okay. 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 Fine. So now here there are 2 vibrations which are actually ruling your life. One is your name. The other one is your signature. Wherever you do your signature, number 6 is ruling you. Wherever you are writing your name, wherever you are going to display your name, there number 6 is ruling, right?
So which is indirectly you have enhanced your unlucky numbers. Okay. I don't know how many of you have watched my previous video. I made a video on number 24. Number 24 in the sense indirectly 6. And I have clearly told in that video also that you are not supposed to enhance any of those numbers which are not, lucky to you. So you have to be really careful on that. Okay. So coming back to our subject, fine. In name numerology, or maybe number numerology, or maybe chronology or vibrology, so there are a lot of combinations which we need to focus. So there are two aspects in our life. One is birth as well as in death. So numerology is the only one thing which can enhance your life, which can enhance your luck in a very and simple format. And for that, there are several things which you can do. Like in my previous videos and demos, I always tell that, with a very simple things like, mobile number, or maybe with your signature, or maybe with the mobile screensaver, or mobile phone color. So these are the simple things wherein you can balance your numbers with regards to the colors which we are going to link up with the planets. So this is a simple technique what you need to do in order to enhance your positive numbers as well as your lucky numbers. So you should follow that. And there are two aspects, as I told. One is the birth, and other one is death. So which both of them are not in our control, but rest of things can be controlled. Only it can be controlled when you know your birth number and destiny number. Okay, I always talk about birth and destiny number more often. Reason being, these are the two numbers which actually rules your life till you die, till our last breath. These are the two major numbers which actually rule our life. One is birth number. So how to calculate birth number? The day which you are born. For example, you are born on 28th December. If you add 2 plus 8, which is equal to 1, so 1 is your birth number. And when I talk about destiny number, if you calculate, if you add all the numbers like 28th December 1983, if this is your date of birth, so when you add all those numbers, you will get some amount. So that amount, if you, again, let's say you got a total of 34, or you got a total of 36 probably. So that 34 or 36, again, if you, add up, so that is going to become 7. So which means you are a 1 born and 7 destined. So 28 to 32 or 33 years of your age, your birth number will be ruling in your life. Okay. This is how a person's life get changes. Usually we think that, शादी इसका हो गया, जब से शादी हो गया ये बंदा पूरा बदल गया है. See, it is not the shadi which actually changed him. It is about the numbers. Okay, it is about the number which actually the person life has been transformed. He changed completely because of the numbers which are ruling him at that particular time. ऐसा नहीं कि उसको शादी हो गया, जिम्मेदारी ज्यादा हो गया, तो इसके वजह से he changed completely. ऐसा नहीं. ठीक है. आदमी में पेशेंस बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाते हैं, और क्या कहते हैं कि एक सिक्योरिटी लेवल्स भी इंक्रीज होने लग जाएगा, और कुछ लोगों का इनसिक्योरिटी फीलिंग भी होने लग जाएगा. ये सारा चीज होता है नंबर्स के वजह से. ओके, तो हम उस नंबर्स को ना, हमको एक प्रॉपर तरीके से ट्यून अप करना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से अपने डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक सिंक्रोनाइज करना चाहिए. ओके, तो अपने न्यूमरोलॉजी के अंदर ऐसा 3 नंबर है जो हम लोग ज्यादा एक्टिवेशन नहीं करते और ज्यादा एनहांस नहीं करते. वो 3 नंबर ये है, 4 और 8. ये फर्स्ट सीरीज में आएंगे. मोबाइल में, नाम में, या कहीं पर भी गाड़ी के नंबर में या घर के नंबर में 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर एंड 8 नंबर, हम लोग डायरेक्टली इन नंबर्स को एक्टिवेशन नहीं करते. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद नंबर 4 एंड 8. एंड तीसरा नंबर है कैटेगरी में जो आ सकता है, वो है नंबर 7. 7 को भी ज्यादा एनहांस मत कीजिए, 7 को भी ज्यादा एक्टिवेट मत कीजिए. 7 से भी आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल्स आने का आवश्यकता 100% है. तो 7 को ज्यादा एक्टिवेट मत कीजिए. सो इन 3 नंबर्स को अवॉइड करते हुए अगर आपके लाइफ में अगर आप लक हासिल करना चाह रहे हैं, तो आपका नाम जो है, आप अपना बर्थ नंबर, आपका जो बर्थ नंबर है, यानी कि 1 नंबर है या 2 नंबर है या 3 नंबर 6 नंबर है, अगर आपके लाइफ में लक एनहांसमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो आपका नाम जो है आपके बर्थ नंबर पे करेक्शन करना चाहिए. और यदि आपको लगता है
आपके लाइफ में बिल्कुल सक्सेस ही नहीं है और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपके लाइफ में और उन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना चाह रहे हैं आप, देन आपके जो डेस्टिनी नंबर है, जैसे कि किसी का 7 हो सकता है, किसी का 5 हो सकता है या किसी का 6 हो सकता है, तो ये नंबर जो है आपको अपने नाम में या तो फिर अपने मोबाइल नंबर में, मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो टोटल आपको करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी। ओके, आप दूसरा चीज ये देखिए, मैं कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता हूँ प्रोएक्टिवली। कुछ लोग अपने नाम को टोटल करके एक फलाना नंबर पे लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9 नंबर पे अगर किसी का नाम लेके आना है तो ये लोग क्या करते हैं ना, 18 नंबर पे लेके आते हैं, नंबर 18। नंबर 18 के बाद में जो हमारे सीक्वेंस में जो है वो है 27, 27। उसके बाद में हमारे सीक्वेंस में जो है 36, 36। उसके बाद में 45, उसके बाद में 54। दिस आर द मैक्सिमम थिंग्स। इससे आगे किसी का भी नेम नहीं जाएगा, 54 से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर लंबा नाम हो तो बात अलग है, बट उसके बाद में 63 नंबर कैरी करेगा। तो अगर आप 18, 27, 36, 45, 54 या 63 नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू नंबर 9 ही आएगा, नंबर 9 ही आएगा। मगर हर एक नंबर का एक एक इंपॉर्टेंस है और हर एक नंबर का एक एक ट्रेड्स है। तो आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा नंबर आपके ऊपर रूल कर रहा है और कौन सा नंबर का आपको ट्रेड्स मिल रहे हैं। जैसे कि मैं 18 नंबर का मैं 2-3 ट्रेड्स आप लोगों को बताता हूँ। 18 नंबर में, यानी कि 18 नंबर इज नॉट दैट ग्रेट नंबर। 18 नंबर में भगवान का ग्रेस जो है, मतलब भगवान का जो अफेक्शन है या तो फिर भगवान का जो दया है वो आपके ऊपर नहीं रहेगा। और 18 में काफी सारे स्ट्रगल्स, काफी सारे रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स, ये सारा चीज आपको 18 नंबर में मिलेगा। अगर वही मैं 27 की बात करूं, 27 से क्या होगा, 27 एक पॉजिटिव नंबर है और जिसका 27 है, मान लो मेरा 27 है डेट ऑफ बर्थ और मेरे 27 नंबर के वजह से मेरी वाइफ को लक एनहांस होता है और मेरी वाइफ की जो लक है वो डबल हो जाता है, मतलब मेरा लक उसको आ जाता है, यानी कि वाइफ या स्पाउस विल बी बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दैट नंबर। मान लो वाइफ को है 27 तो हस्बैंड विल बी बेनिफिटेड और हस्बैंड को है तो वाइफ विल बी बेनिफिटेड। ओके, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, दिस कैन ऑल्सो हैपन इन द बिजनेस ऑल्सो। ये भी मैंने ऑब्जर्व किया, बिजनेस में भी हो सकता है। ओके, अभी हम बात करते हैं नंबर 36 का। 36 एक ऐसा नंबर है, 36 आपके लाइफ में काफी सारे ऑब्स्टेकल्स लेके आए। आपके मैरिज में डिले कर देगा 36। और अगर आपका शादीशुदा है तो आप अपने पर्सनल लाइफ से खुश नहीं रहेंगे। ठीक है, एक एटीट्यूड वाली प्रॉब्लम आ जाएगी दोनों में, तू कितना मैं कितना, मैं कमा रही है तू भी कमा रहा है, ये ऐसे वाली बात चलेंगे आपकी लाइफ। तो 36 नंबर से आपको एटीट्यूड इश्यूज भी आएंगे और अपने पर्सनल लाइफ बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज भी आपको हमेशा रहेगा। हाँ, 36 नंबर से थोड़े लोग, कुछ लोग हैं जो अच्छा पैसा है, बट पैसा है तो खुशी नहीं रहेगा, खुशी है तो पैसा नहीं। लाइफ में अपने पास कोई ना कोई एक चीज रहेगा, दूसरा चीज नहीं रहेगा, ये तो सब जानते हैं। अभी हम बात करते हैं 45 का। 45 एक ऐसा नंबर है, ये किक स्टार्ट नंबर, चाहे वो किसी को भी आप दो, अगर किसी का नंबर 9 नंबर उन लोगों के लिए पॉजिटिव है तो 45 नंबर, आप 45 नंबर से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो या 45 नंबर से कोई भी व्यक्ति को आप नाम दो, उसका लाइफ रॉकेट के जैसे दौड़ेगा, उनको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा 45 नंबर से। अगर वही हम बात करें 54 की, 54 में क्या है ना, 45 का जितना ऑस्पिशियस है 54 उसका उतना डबल है, उसका नेगेटिव इफेक्ट देगा। तो ऐसे ही कुछ नंबर्स है अपने लाइफ में जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं, कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। और जो पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं और जो अच्छे नंबर्स है, आज मैं आप लोगों को कुछ नंबर्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि अगर किसी का शॉर्ट नेम है तो शॉर्ट नेम में कुछ नंबर्स मैं बताता हूँ, जैसे कि 9, 10, 14, 15, 19, यानी कि 9, 10, 14, 15 एंड 19। अगर किसी का शॉर्ट नेम है तो यही नंबर पे आपका नेम को करेक्शन करना चाहिए या तो फिर नया नाम देना चाहिए। आई एम रिपीटिंग द नंबर्स अगेन, 9, 10,
14, 15 या 19, बस इतना ही नंबर्स पे आपको करना। तो आपके जीवन में ये जो लक 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 की जो बात मैं कर रहा हूँ ना, वो लक एनेबल होने का जो नंबर है यही नंबर है। और उसके बाद में हम 20 की सीरीज यानी कि 20 सीरीज में अगर हम बात करें, 23 एंड 24 आर द वेरी गुड नंबर्स। 23, 24 एंड 27 आर द वेरी गुड नंबर्स। ठीक है, तो 23 एंड 24 में फिर आपको स्टेबिलिटी, फिर आपको पैसा, ये सारा चीज मिल जाए। अगर हम 30 सीरीज की बात करते हैं तो 32, 33, 37 ये 3 नंबर्स आपके लाइफ में आपको जो चीज आप मांगते हो वो चीज देने की कोशिश करेगा। और खास करके स्टेबिलिटी, पैसा, और जो लोग अकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए 37 भी बहुत अच्छा नंबर है। 37 से भी आप अपना नाम ले जा सकते हो अगर आप अकल्ट साइंसेस में हो तो। उसके बाद में हम 40 सीरीज की बात करते हैं। 40 में 41, 42, 45, 46 ये सीरीज के बहुत अच्छे नंबर्स हैं। तो अगर आपके नेम उसके नियर में कहीं पर भी आ रहा है तो आप अपना नाम को 41, 42, 45 या 46 पे जरूर ले जा सकते हैं, प्रोवाइडेड 42 यानी कि 6 नंबर आपका नेगेटिव ना हो। 6 नंबर किसका नेगेटिव होगा? जो 3 तारीख को पैदा हुआ है, 3, 12, 21 या 30th को जो पैदा हुआ है, या तो फिर अपना डेट ऑफ बर्थ पूरा टोटल करने के बाद अगर 3 आ रहा है, जैसा प्रकाश जी के केस में हुआ है 30 आ रहा है उनका डेट ऑफ बर्थ, अगर 3 आ रहा है तो आप 24 को, 33 को और 42 को, 51 को, इन नंबर को अवॉइड करें। बाकी के नंबर जो भी मैंने बताया उस नंबर पे आप अपना नाम जरूर ले जा सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 50 सीरीज में। 50 सीरीज में 50, 51, 55 ये बहुत ही अच्छे नंबर्स माने गए हैं। और अगर 58, 59 भी थोड़ा इधर उधर नंबर से फिर भी चल जाएगा। और 60 नंबर, तो 60 नंबर से किसी का भी नाम उतना बड़ा नहीं रहता। ठीक है ना, अगर सरनेम भी जोड़ लो आप, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 के अंदर ही अंदर आएगा। अगर किसी का नाम बड़ा है या तो फिर सरनेम बड़ा है तो लगभग जा सकता है 65, 68, 69 तक। मगर जितना नाम आपका बड़ा रहेगा, जितने ओवल्स बढ़ेंगे आपके नाम में, नाम का जो वाइब्रेशन है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम आपको नाम को लंबा नहीं खींचना चाहिए। ओके, दूसरा चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने कम से कम कुछ हजारों लाख प्रोफाइल्स मैंने देखा है न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस के दौरान या तो फिर मेरे क्लाइंट्स के प्रोफाइल्स। तो मैक्सिमम जो मैंने ऑब्जर्वेशन ये किया है कि काफी सारे प्रोफाइल्स में 5 नंबर मिसिंग है। 5 नंबर मिसिंग होने के वजह से बहुत सारे लोगों को अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं। 5 नंबर आपके लाइफ में एक ऐसा नंबर है जैसे कि आपका बैकबोन है। अगर आपका बैकबोन नहीं है तो आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते। बैकबोन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से 5 नंबर भी आपके लाइफ में उतना ही जरूरी है। एंड विदाउट 5 नंबर आपके लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे। ओके, तो इनके लाइफ में अगर 5 नंबर लाना है, अगर नेम नंबर में पॉसिबिलिटी नहीं है, हम लोग 5 नंबर पे लेके नहीं आ सकते हैं, तो इन लोगों के लिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी काम करेगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आप लोग अपने नंबर को टोटल जो है वो 5 नंबर पे ले आ सकते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर पे ले आ सकते हैं, या तो फिर आपके मोबाइल नंबर एंडिंग में 55 कर सकते हैं या 555 कर सकते हैं और टोटल को 5 लेके आ सकते हैं। ओके, तो ये ऐसे कुछ ट्रिक्स है जो आपको फॉलो करना है तो 5 नंबर पे ले आने के लिए। दूसरा चीज, अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो या तो फिर कोई फ्लैट खरीद रहे हो और आप जानते हो कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे नंबर से मिसिंग है, तो उन नंबर्स को फुलफिल करने के लिए आप जो भी नया गाड़ी लेते हो या तो फिर फ्लैट लेते हो, तो इन चीजों को ध्यान देना कि आपका लकी नंबर क्या है, आपका मिसिंग नंबर क्या है। जो लकी नंबर आपका रहेगा वो लकी नंबर को एनहांस करने के लिए उस पर्टिकुलर फ्लैट नंबर लेने की कोशिश कीजिए, या तो फिर उस पर्टिकुलर टावर नंबर, जैसे कि ABCDE रहता है, तो उसी तरीके से टावर नंबर्स भी डिवाइड होते हैं। तो आप टावर नंबर्स पे सिलेक्शन भी अपना लकी नंबर को एनहांस कर सकते हैं। फ्लोर नंबर जैसे कि 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा 4th फ्लोर और 8th फ्लोर को आप अवॉइड ही करें, अच्छा रहेगा। तो उसके बाद में आती है बात, ये है फ्लैट नंबर की। फ्लैट नंबर भी आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से आप एनहांस भी कर सकते हो। और कुछ चीजें ऐसे है कि मतलब जो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग है वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर उनको पॉजिटिव वे में किस तरीके से करना है वो आपको थोड़ा बाद में धीरे धीरे करके, आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो उस रेमडियल पार्ट में आपको समझ में आएगा। दूसरा चीज, आपको इमीडिएट इफेक्ट आपके लाइफ में आना है तो
फर्स्ट जो है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर से बहुत ही कम समय में लोग रिजल्ट्स देख चुके हैं। ठीक है, ये प्रूवन साइंस है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्रूवन साइंस है, और इसमें आप लोगों को कम से कम समय में आपको रिजल्ट, तकरीबन मैं 3 महीने या 4 महीने के लगभग में 1200 प्लस लोगों को मैंने मोबाइल नंबर दिया, 1200 प्लस मेंबर्स को मैंने मोबाइल नंबर दिया है, और जिसमें काफी सारे लोगों का लाइफ सेटल हुआ है। मुझे बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला है, जिसमें मेरे आंखों के सामने आज इस पर्टिकुलर वेबिनार में 2 बंदे मेरे आंखों के सामने है, एक मंजुनाथ है और मुबारक भी, इनको भी मैंने नंबर सिलेक्शन करके दिया। ठीक है, तो जहां पर ये नंबर सिलेक्शन जो काम करती है, ये बहुत स्विफ्ट काम करती है, बहुत फास्ट काम करती है। अभी दूसरा हम बात करते हैं नेम का। तो नेम न्यूमरोलॉजी लेकर काफी सारे डिबेट्स हुए थे, और काफी सारे लोग अपने अपने क्या कहते हैं, अपने अपने विजन्स और अपने अपने परसेप्शंस बताए। तो इसमें दो चीजें हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि नेम करेक्शन यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी के नाम में डबल ए, डबल के, डबल पी या डबल एस कर देते हैं। ठीक है, और वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके लाइफ में कुछ मैजिक हो जाए। ठीक है, तो मैं तो ये नहीं कहता कि उनके लाइफ में मैजिक नहीं होगा, होगा, पक्का जरूर होगा, मगर आपको ये जानना है कि आप कौन सा लेटर को एनहांस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मान लो अभी मंजुनाथ है, मंजुनाथ में आप डबल एम कर रहे हो या डबल जे कर रहे हो या तो फिर डबल यू कर रहे हो, कौन सा लेटर से आप उस पर्टिकुलर नाम को करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कई लोग पी है, पी से जो स्टार्ट होता है नाम, पी में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि पी जो लेटर है वो 8 नंबर यानी कि सैटर्न को डिनोट करता है। तो सैटर्न क्या है, स्लो प्लैनेट है। तो सैटर्न क्या करेगा, चीजें डिले कर देगा। तो डिले मतलब पी वाले कैसे रहेंगे, वो लेजी रहेंगे। अगर वही बंदे को अगर हम लोग सिंगल पी से डबल पी अगर दे दिया गलती से भी करेक्शन में, तो क्या होगा, बंदा और लेजी हो जाए, उसके चीजें उसके लाइफ में और डिले हो जाएंगी। तो हमें ये भी जानना है कि कौन से लेटर से हम लोग अपना लाइफ को एनहांस कर सकते हैं। कुछ लोग ए, ज्यादातर ए करते हैं, जैसा कि अभी मेरे नाम में भी देख सकते हो आप, राजेश का मैंने डबल ए इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। तो इसमें क्या है ना, हम लोग को ये भी देखना है कि कितने सारे ओवल्स अपने नाम में आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू, कितने सारे ओवल्स आ रहे हैं हमारे नाम पे, और कितने सारे सन लेटर्स आ रहे हैं। सन लेटर्स यानी कि ए, जे, क्यू, आई, वाई, जो भी हम लोग बात करते हैं ना अजी, ए आई जे क्यू वाई, तो कितने सारे सन लेटर्स उनके नाम में आ रहे हैं, ये भी मैटर करता है। जितने सारे सन लेटर्स ज्यादा होंगे, बंदा उतना जिद्दी होगा, एडमेंट हो जाएगा बंदा, रूड हो जाएगा बंदा। ये वो रूड होना उसका नेचर नहीं है, क्योंकि अननोइंगली जो सन लेटर्स उसके नाम में ज्यादा हो गए, या तो फिर वो खुद गलती से ज्यादा कर दिया, तो क्या करेगा, सन उसके ऊपर ज्यादा रूल करने लग जाएगा। रूल करने से क्या होगा, आदमी का बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इसी दौरान इसी तरीके से हमारे लाइफ में ये भी जानना जरूरी है कि हमारे लाइफ को कौन सा लेटर रूल कर रहा है। आर रूल कर रहा है, आर, आर जिसका नाम शुरू होता है, ये लोग बहुत स्ट्रगलिंग नेचर के, एक टास्क उनके लाइफ में कंप्लीट हुआ, दूसरा टास्क के लिए ये लोग रेडी रहते हैं, दे नेवर एवर गिव अप, रेडी रहते हैं लोग। और कोई भी चीज को फेस करने के लिए उन लोगों के पास उतना हिम्मत है। और हेच, जैसे काफी लोगों के नाम में हेच मैं देख पा रहा हूँ अभी, सिर्फ पवन कुमार के नाम में नहीं है, प्रदीप प्रदीप के नाम में नहीं है, निशा गुप्ता के नाम में है, रेवती जी के नाम पे नहीं, हाँ, आप प्रकाश के नाम में। जितने लोगों के पास ये जो हेच लेटर है, हेच जो क्या है ना, ये हेच आपका लैडर है। तो ये लैडर क्या करेगा, आपको अपने लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। नेक्स्ट लेवल यानी कि जैसा कि हेच का जो शेप आप देख पा रहे हो ना, एक लैडर का शेप, तो हेच क्या करेगा, अगला मतलब नेक्स्ट स्टेप को आपको आगे लेके जाएगा। तो जब आप नाम करेक्शन करते हो, अगर उस पर्टिकुलर बंदे के नाम में हेच नहीं है, तो हेच अगर वो नाम में अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करके नेम करेक्शन अगर करेंगे, तो उसका लाइफ बहुत अच्छा सेटल हो जाएगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल छोटा छोटा करेक्शन, बिल्कुल बहुत भारी करेक्शन है। हेच क्या है, नंबर 5 है। नंबर 5 क्या है, स्टेबिलिटी है। ओके, एक छोटा सा अक्षर से भी हम लोग स्टेबिलिटी ले आ सकते हैं लाइफ में। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे एक फेसबुक ग्रुप में, मेरे एक फेसबुक फ्रेंड में
गौतम करके है जो टैरो रीडिंग वास्तु वगैरह करता है वो, उसका जो एक्चुअल नाम था GAUTAM। तो लगभग वो 19 कुछ आएगा उस टोटल का, 19 या 14 ऐसा कुछ आएगा टोटल उसका। तो हमने करेक्शन उसमें H जोड़ दिया था, GAUTHAM। जिस दिन से GAUTHAM TARROT टैरो टैरो ट्रेडिंग करता है, गौतम टैरो कर लिया ना, बंदा बहुत बिजी हो गया। उनका जो बिजनेस है, बिजनेस यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। मतलब महीने में 30 लोगों को पढ़ाता था, अभी 60 लोगों को पढ़ा रहा है। महीने में 10 कंसल्टेशन होते थे, अभी 20-30 कंसल्टेशन वो कर रहा है। और एक छोटा सा लेटर हेड से उसके लाइफ में बहुत कुछ फर्क आया है। ठीक है, ये होगा छोटा सा करेक्शन के बारे में। अभी हम बात करते हैं नया वाइब्रेशन देने की। कितने लोग बिलीव करते हो जो आपका नाम है एक नक्षत्र का जो लेटर है उससे बनता है? आई थिंक मोस्ट ऑफ योर नो, बचपन में हम लोग अपने नक्षत्र के हिसाब से, नक्षत्र का जो लेटर है, रा का पा जो भी है, उस पर्टिकुलर नक्षत्र लेटर से हम लोग नाम देते हैं। मैंने काफी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को देखा है। मान लो एग्जाम्पल के नाते मैं पवन जी का नाम लेता हूँ। पवन कुमार है, पवन कुमार ने अपने नाम को डबल एन करके रखा है। डबल एन क्या है ना, एन है सक्सेस लेटर, एन आपको सक्सेस देगा। जैसे निशी गुप्ता है एन, एन है सक्सेस लेटर। तो ये पवन जी ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर नाम को उनके लाइफ में जो हो रहे हैं चीजें, ये किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को अप्रोच की है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो वो न्यूमरोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक नया नाम दिया। अभी पवन जी रेडी नहीं थे वो नया नाम लेने के लिए, क्योंकि वो नया नाम तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। जैसे कि पवन के जगह पे उनका नाम हो गया है अमित। अभी उनका बॉडी सोल माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो नया नाम, क्योंकि अल्फाबेट बदल गया है, नाम बदल गया है, वाइब्रेशन बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। और ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि मेरा नाम बिल्कुल चेंज ही हो गया है। मान लो ये राजी भी हो गए चेंज करने, राजी भी हो गए चेंज करने के लिए, और चेंज कर भी लिए। तो इनका सक्सेस रेट कितना होगा, सक्सेस रेट कितना होगा इनका? सक्सेस रेट तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ना, क्योंकि नया वाइब्रेशन लेके आए हैं अपनी लाइफ में। पवन के जगह पे अमित ले आए हैं, तो सक्सेस रेट तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि पुराना वाइब्रेशन नहीं है, नया वाइब्रेशन है अपनी जिंदगी में। कुछ नया फील करेगा, कुछ नया वाइब्रेशन रहेगा, और अभी उसका अच्छा बिल्ड होगा, लोगों के साथ बहुत अच्छा बात करेगा। अगर वही पवन को पवन के जगह में प्रकाश दे दिया, क्योंकि ये पवन जो है, ही इज वेरी मच कंसर्न अबाउट द नक्षत्र लेटर। नक्षत्र बोलता है कि नक्षत्र लेटर ही मुझे चाहिए। तो मैं अपनी प्रैक्टिस में ये देखा, जितने भी लोग नेम चेंज किए हैं वही नक्षत्र लेटर से, उनके लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। देर आर नो चेंजेस इन देयर लाइफ। प्लीज बिल्कुल। रिमेम्बर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नक्षत्र लेटर जो है, उस पर्टिकुलर नक्षत्र का जो प्लैनेट है, प्लैनेट आपके दशा में अंतरदशा में है, प्लैनेट आपको पॉजिटिव रिजल्ट है, यानी कि मतलब नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, तो आपको रिजल्ट आएगा। अगर वो नेगेटिव रिजल्ट में है, या नेगेटिव हाउस में है, या नेगेटिव कोई भी प्लैनेट से कनेक्टिविटी है, तो आपको उस पर्टिकुलर लेटर से पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर आप नाम चेंज करने के लिए अपने माइंड फिक्स कर लिए हैं, तो दूसरा अक्षर ढूंढिए जो अक्षर आपको फायदा दे सके। दूसरा अक्षर का नाम लीजिए, दूसरा अक्षर से ही शुरू कीजिए, तो ताकि आपका लाइफ चेंज हो। सेम अक्षर से अपना नाम को करेक्शन मत कीजिए, कुछ फायदा होने वाला नहीं है आपकी लाइफ। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से आप अपने ईमेल एड्रेसेस, हाउस नंबर्स, व्हीकल नंबर्स, ये सारे चीजों को आप अपने लाइफ में एनहांसमेंट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे जरूरत है, आप अपने लाइफ को एनहांस कर सकते हो, और कुछ नंबर्स को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को आज एक टिप दूंगा, जितने लोग भी मतलब क्लाइंट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्लाइंट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, किसी किसी के लाइफ में होता है ना कि म्यूट कर देता हूँ। थैंक यू। ओके, तो क्लाइंट्स के लिए काफी सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हो, तो जो लोग क्लाइंट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो फिर जो लोग
कुछ बिजनेस एक्सपेंशन के लिए जो सोच रहे हैं ना, तो इनके पास जो मेजर प्रॉब्लम होगी वो है 5 नंबर और 6 नंबर मिसिंग होगी इनकी लाइफ। तो 5 नंबर और 6 नंबर यानी कि कम्युनिकेशंस। अगर कम्युनिकेशंस यानी कि अगर आपका मोबाइल नंबर में हम लोग 5 नंबर और 6 नंबर लेके आएंगे टोटल में, तो उनका जो क्लाइंट्स और उनका क्लाइंट्स के साथ जो बातचीत करना है, ये सारा चीज बढ़ेगा। ठीक है। और मान लो जैसे कि अभी सभी जानते हैं डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 8 ही नंबर्स रहते हैं, मोबाइल नंबर में 10 नंबर्स रहते हैं। और डेट ऑफ बर्थ में रिपीटेशन नंबर्स की वजह से, जैसे कि कोई व्यक्ति पैदा हो गया 2010 में और उसका मंथ है 10, डेट ऑफ डे है 10, तो 10 अक्टूबर 2010, तो इसके जिंदगी में 3 जीरोस आ चुके हैं और 4 बार 1 आ चुका है और 2 बार, सॉरी 1 बार 2 आ चुका है। तो मतलब इसके लाइफ में 1 2 के अलावा दूसरा कोई नंबर ही नहीं। तो यानी कि दूसरे प्लैनेट्स का इनके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं है। तो उन चीजों को अगर अगर हम प्रभावित करना चाहिए, तो उनके लाइफ में हम लोगों को वो नंबर्स को कहीं ना कहीं एक्टिवेशन करना चाहिए। जैसे कि कोई गाड़ी नंबर में हो गया, या तो फिर कोई मोबाइल नंबर में हो गया, घर के नंबर में हो गया। और आजकल सभी जानते हैं कि प्राइवेट बैंक्स में आप अपना फैंसी नंबर, अकाउंट नंबर ले सकते हैं। ठीक है, मैंने काफी सारे क्लाइंट्स को भी दिया है। आप अपने जो मिसिंग नंबर्स और लकी नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन बनाकर आप कोई भी प्राइवेट लिमिटेड बैंक में अपना मुताबिक आप अकाउंट नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बेटर होगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन जितने होंगे उतना आपका नंबर्स एनहांस होते रहे। और छोटा सा ट्रिक और एक बताता हूँ, जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी दिया आप लोगों को। मोबाइल नंबर में अगर आप 55556 आपका मोबाइल का जो अनलॉक कोड रखते हो, 55566 या 192939 या 3003, ये क्या है ना, कुछ ऐसे नंबर्स है जो आपके लक को एनहांस कर सकते हो और आपके जो कैश का जो इनफ्लो है वो बढ़ा सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 192939, या तो फिर आप 55566 भी कर सकते हैं और 3003 कर सकते हैं। ये सारे के सारे नंबर 6 पे लैंड करेंगे। जितने भी मैंने नंबर्स बताई वो सारे के सारे नंबर 6 पे लैंड करेंगे। चाहे आपका एटीएम कार्ड हो, एटीएम कार्ड पिन नंबर हो, डेबिट कार्ड पिन नंबर हो, या तो फिर आपका ऑनलाइन पिन नंबर हो, जो भी पिन नंबर है, अगर 4 डिजिट्स का है तो 3003 कीजिए, अगर 6 डिजिट्स का है तो 192939 या 55566 भी अगर आप कर सकते हैं। ओके, सो ये और एक टिप रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इसी 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 तरीके से हम लोग ये क्या कहते हैं, न्यूमरोलॉजी में हम लोग अपने लाइफ को एनहांस करने का, इतने सारे जो टूल्स है, इतने सारे जो मेथड्स है, हम लोग उस व्यक्ति को एनहांस करने के लिए हम लोग करेक्शंस और चेंजेस रिकमेंडेशन करते हैं। ओके, तो अभी अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर डेमो का जो रीजन है उसके बारे में। हमारा कोर्स जो है 3 तारीख से, यानी कि मार्च 3 तारीख से लेकर स्टार्ट हो रहा है। टोटल 60 डेज का क्लास हो गए, 60 डेज। और ये क्लास जो है हम लोग वर्किंग एम्प्लॉयज को और बिजनेस पीपल को और स्टूडेंट्स को, सभी लोगों को माइंड में रखते हुए हम लोग एक कोर्स डिजाइन किए हैं 60 डेज का। यानी कि आपको टोटल 21 सेशंस मिलेंगे इसमें, विथ प्रैक्टिस 21 सेशंस मिलेंगे आपको। और एक हफ्ते में, मतलब 1 वीक में आपको 3 क्लासेस रहेंगे, फ्राइडे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। और टाइमिंग्स जो है इवनिंग 7 PM टू 9 PM, बस। इससे ज्यादा कोई स्पेशल क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, संडे क्लास, मंडे क्लास, ये सब कुछ नहीं रहता है। ओनली 3 क्लासेस इन ए वीक। ऐसे ही करके आपको टोटल 21 क्लासेस मिलेंगे। उसके बाद में एक 1-to-1 कनेक्शन रहेगा आपके साथ में। अगर कोई इंडिविजुअली अपने बारे में या तो फिर उनके फैमिली के बारे में अगर कुछ करेक्शन करना है, उनके क्लाइंट्स के लिए कुछ करेक्शन करना है, तो 1-to-1 भी एक सेशन आप लोगों को एक एक्स्ट्रा मिलेगा, जो आप अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप बुक कर सकते हो व्हेन एवर यू आर कंफर्टेबल टू डिस्कस दोस थिंग्स। ओके, तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी। इसमें हम पर्सनल न्यूमरोलॉजी, अभी जो भी हमने बात किया कि नाम किस तरीके से करेक्शन करते हैं, और कौन से लेटर को हम लोग एनहांस करना चाहिए, कौन से लेटर को हम लोग अवॉइड करना चाहिए, वो लेटर का पीछे जो नंबर है वो क्या है, वो नंबर से हम लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। या तो फिर कोई न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी को हम लोग किस तरीके से नाम देते हैं, कौन सा अक्षर से हम लोगों को शुरू करना चाहिए, कौन सा लकी लेटर से शुरू करना चाहिए, या तो फिर हम लोग नक्षत्र का जो लेटर है उससे स्टार्ट करना चाहिए, या तो फिर न्यूमरोलॉजी के अनुसार
उसका जो लकी लेटर है, यानी कि लकी नंबर है, नंबर के पीछे जो लेटर है उससे हम लोग शुरुआत करना चाहिए, ये भी हम जानेंगे। और इसमें काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि वाइब्रेशंस नेम में, प्रोनोलॉजी या तो फिर नेम न्यूमरोलॉजी। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि आपका पहला नाम यानी कि आपका फर्स्ट नेम किस तरीके से हम लोग एक पॉजिटिव नंबर पे ले आ सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद में फर्स्ट नेम या मिडिल नेम या लास्ट नेम, या तो फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये दोनों को कॉम्बिनेशंस करते हुए ये पॉजिटिव नंबर्स पे किस तरीके से लेके आ सकते हैं वो आप सीखेंगे। और न्यू बॉर्न बेबी के लिए कौन सा लेटर, ये भी आप सीखेंगे। यानी कि पर्सन रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, जैसे कि लकी नंबर्स है, अनलकी नंबर्स, लकी कलर्स, अनलकी कलर्स, लकी डेज, लकी डेट्स, ये सारा कुछ आप पर्सन के बारे में सीखेंगे। Next, you are going to learn about email addresses, how to select lucky email addresses, because email address also plays a very, very important role in our day-to-day life. लोग शॉपिंग करते हैं, या तो फिर जॉब्स अप्लाई करते हैं, और तो फिर प्रपोजल्स भेजते हैं, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, या तो फिर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है जो आप क्लाइंट्स को ढूंढते हो। सो इवन दैट ईमेल एड्रेस इज प्रेटी मच इम्पोर्टेंट। वो आपके कंपनी या आपके खुद के जो पॉजिटिव नंबर्स है उस पॉजिटिव नंबर्स पे ही आना चाहिए। दैट विल आल्सो यू विल लर्न, एंड यू विल लर्न अबाउट व्हीकल न्यूमरोलॉजी। व्हीकल नंबर क्या रहना चाहिए, व्हीकल नंबर्स में कौन सा नंबर को हम लोग अवॉइड करना चाहिए, कौन सा नंबर रहने से हमारे लाइफ में क्या आएगा, क्या एक्सीडेंट्स क्यों होंगे, जैसे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, या तो फिर बड़े एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। तो ये सारा चीज हम लोग व्हीकल न्यूमरोलॉजी में भी सीख सकते हैं। उसके बाद में हाउस न्यूमरोलॉजी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आजकल का तो टावर सिस्टम हो गया है। टावर सिस्टम में फ्लोर, टावर एंड फ्लैट नंबर, ये सारा कुछ मैटर करता है डायरेक्शन के साथ साथ में, वास्तु के साथ साथ में। तो ये कौन सा टावर, फ्लोर या फ्लैट नंबर लेना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और उसका रेमेडीज क्या है, किस तरीके से अगर हम लोग रेमेडीज कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। एंड बिजनेस न्यूमरोलॉजी के बारे में सीखेंगे हम लोग। बिजनेस न्यूमरोलॉजी में कोई भी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो प्रोप्राइटरशिप कंपनी में हम लोग किस तरीके से नाम देना चाहिए, पार्टनरशिप बिजनेस में कौन से मैटर्स को कंसिडरेशन लेना चाहिए, किसका नंबर ज्यादा लेना चाहिए, अगर कोई एक्टिव पार्टनर हो या तो फिर कोई स्लीपिंग पार्टनर हो तो उनके कॉम्बिनेशन हम किस तरीके से ले सकते हैं। मान लो कोई 10-15 पार्टनर्स है जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उन लोगों को जो कॉम्बिनेशन से हम लोग किस तरीके से लेना है, किस तरीके से लोगो बनाना है, लोगो का शेप किस तरीके से रहना चाहिए, क्या कलर्स होनी चाहिए, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स, ये सारा चीज कैसे बनना चाहिए। तो वो बिजनेस अकॉर्डिंगली बनना चाहिए या तो फिर एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनना चाहिए, ये सारा आप सीखेंगे। और नेक्स्ट, जैसे अभी मैं बहुत सारे लोगों को ऑन डे टू डे बेस में इंटरेक्ट करते रहता हूँ, जैसे मेरे स्टूडेंट्स है, क्लाइंट्स है, या तो फिर मेरे से जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कई सालों से, उनसे भी मैं जब इंटरेक्शन करता हूँ, मैं लोगों में ये देखता हूँ कि लोग यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक कोर्स कर लेते हैं, एक डेमो अटेंड करते हैं, फिर बेसिक कोर्स अटेंड कर लेते हैं, और कहीं और डिस्काउंटेड में कुछ कोर्स मिलता है तो वहां पर भी कोर्स कर लेते हैं। तो जब आप पूरा इस पजल को अगर कनेक्ट करने की कोशिश करो ना, ये जो यहाँ पर जो सीखा आपने, ये मेथड्स अलग है, वहां पर जो सीखा वो मेथड्स अलग है, और दोनों को क्लब करके कुछ करने की कोशिश करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए हमारे पास सिर्फ सिंगल कोर्स है, इसके बाद एडवांस कोर्स, सुपर डुपर एडवांस कोर्स, ऐसा कुछ कोर्स नहीं है हमारे पास। जो भी है कंप्लीट पैकेज। इसके बाद में सीधा आप अपना प्रोफेशनल लाइफ शुरू कर सकते हैं। और प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्या चाहिए सीखते हैं हम लोग, मगर कहाँ से शुरू करना ये हमें पता है। जो कहाँ से शुरू करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ क्लास में, कि कहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्री करना है, कहाँ पर आपको फ्री में रजिस्ट्री करना है, कहाँ पर कैसे आपकी विजिटिंग कार्ड बनाना है, कैसे आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है, ये सारा चीज आप लोगों को मैं बैक एंड पुशअप दूंगा। और उसके बाद में जैसे मैंने क्लास की शुरुआत में ही ग्राफोलॉजी और सिग्नेचर के बारे में बात, तो नेम करेक्शन तो हो गया है, तो नेम करेक्शन के बाद तो सिग्नेचर भी इक्वली चेंज होना चाहिए। तो सिग्नेचर किस तरीके से हम लोग चेंज करें, दैट इज ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट। तो आप थोड़ा बहुत जानेंगे ग्राफोलॉजी के बारे में कि आदमी की जो हैंडराइटिंग है, हैंडराइटिंग के मुताबिक हम लोग किसी का भी प्रिडिक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। आदमी सेंसिटिव है या तो फिर हार्ड वर्किंग नेचर है, इम्पल्सिव है, या तो फिर कॉन्फिडेंट बंदा है, या तो फिर बिजनेस बंदा है, ये क्या है, हम ये पूरा हैंडराइटिंग के दौरान सीख सकते हैं। और सिग्नेचर भी सिमिलर सेम ही है,
हम लोग स्ट्रोक से, वो जो लेटरिंग से, वो जो फॉन्ट है, वो स्लैंट है, और उनका जो प्रेशर है, पेपर के ऊपर जो प्रेशर लगा के जो सिग्नेचर करते हैं स्ट्रोक से, इन चीजों के ऊपर हम लोग सीखेंगे कि ऐसा करने से व्यक्ति कैसा रहे, इनके लाइफ में क्या क्या चीजें हो सकती है और इनके लाइफ कैसे सुधार सकते हैं। तो हम लोग न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी को जो कनेक्ट करते करते हुए नेम के अनुसार ही हम लोग सिग्नेचर का भी डिजाइन फॉर्मेशन आप लोगों को सिखाते हैं। ओके, तो जैसे मैंने कहा, इट इज गोइंग टू बी ए 21 सेशंस, कंप्लीटली 21 सेशंस ऑफ टोटल 60 days of course, and weekly 3 classes as I mentioned earlier, Monday, Wednesday and Friday evening 7 p.m. to 9 p.m. और जो भी कोर्सेस, जो भी क्लासेस हम करवाएंगे, सारे के सारे पीडीएफ्स आपको एट द एंड ऑफ द कोर्स, नॉट बिफोर द कोर्स, एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको एक पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। और डे टू डे क्लासेस, जैसा अभी क्लास खत्म हुआ तो आज का जो रिकॉर्डिंग है आपको तुरंत मिल जाएगा यूट्यूब का प्राइवेट लिंक। 1 ईमेल एड्रेस को एक्सेस दिया जाएगा, लाइफ लॉन्ग आप कभी भी कहीं पर भी आप अपना वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। और उसके साथ साथ में आपको हैंड होल्डिंग, 3 महीने की हैंड होल्डिंग रहेगी। 3 महीने के अंदर अंदर जैसे कि आपको लगता है कि मैं क्लाइंट को फेस नहीं कर सकता, मुझे कुछ पुशअप चाहिए बैकएंड से, तो फिर कुछ ये चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए पीछे से, हम लोग आपको 3 महीने तक बैकएंड में सपोर्ट देंगे। जो भी करेक्शन है आपके क्लाइंट के, जो भी चेंजेस है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसका एक क्या कहते हैं परसेंटेज में हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे कि 37% मेरा कंपनी लेगा, अकल्ट किंग, अकल्ट किंग मेरा कंपनी का नाम है, अकल्ट किंग लेगा, और बाकी का 63% वो आपको जाएगा। मगर क्लाइंट के लिए आप ही फ्रंट एंड रहेंगे, हम बीच में कहीं पर भी नहीं आएंगे। जब तक आपको लगता है कि हाँ मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अकेला कर सकता हूँ, तब तक हम लोग आपके साथ में रहेंगे और आपको हर एक चीज में गाइड करते जाएंगे। मे बी छोटा प्रोफाइल हो सकता है वो, या तो फिर बड़ा प्रोफाइल भी हो सकता है, कोई लोगो डिजाइन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या तो फिर एक कंपनी का ब्रांड नेम हो सकता है, या तो फिर एक बिल्कुल छोटा सा करेक्शन भी हो सकता है। तो जो भी है हम लोग हैंड होल्डिंग देंगे आप लोगों को 3 महीने, मिनिमम 3 महीना है, बाकी के आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको कंटिन्यू करना है या तो फिर बंद करना है, खुद करना है या तो फिर बिल्कुल करना ही नहीं है, वो आपका मर्जी है। ग्रुप हमारा 24 आवर्स ओपन ही रहेगा। वो तो आप कुछ भी सवाल है, आप मतलब इफ यू फील दैट इज ए कॉमन क्वेश्चन और ए कॉमन ये क्वेरी है, तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली अगर कोई क्लाइंट का है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो ग्रुप में भी डाल सकते हो और पर्सनली मेरे से फोन पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेमो एज वेल एज द कोर्स। एंड इसका जो ट्रेनिंग का जो फीस है ये है 33,000 रुपीज है। और जैसे मैंने कहा, इसके बाद में कोई प्रोफेशनल कोर्स या उसके सुपीरियर कोर्स ऐसा कुछ नहीं है, ये ग्रैंड मास्टरी ऑफ न्यूमरोलॉजी कोर्स है, जिसमें सारे चीज जितने भी मैंने डिस्कशन किया है सारे के सारे इसी में आ जाएंगे। इसके बाद में कोई ऊपर कोई सुपीरियर कोर्स नहीं है। दूसरा चीज, अगर कोई वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं, वन टाइम पेमेंट वालों को 3,000 रुपीज डिस्काउंट होगा, फाइनल अमाउंट 30,000 रुपीज होगा। अगर कोई इंस्टॉलमेंट बेसिस पे अगर जाना चाहता है तो इंस्टॉल पेमेंट पे वो लोग 2 टाइम पे कर सकते हैं। पहले आपको 23,000 पे करना होगा, फिर बाद में आपका जो भी 21,000 जो बैलेंस है, सॉरी 11,000 जो बैलेंस है, आप 10 डेज या 15 डेज के बाद में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अगर किसी का कुछ सवाल है तो हम लेते हैं, या तो फिर हम लोग ये डेमो सेशन यहीं पर खत्म कर देते हैं। गुरुजी। यस मुबारक जी। गुरुजी नमस्कार गुरुजी। जो इस ग्रुप में जितने भी नए लोग हैं उनको सबको विनती करता हूँ, वहाँ यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। जो सही रास्ता गुरुजी, गोल्डन गुरुजी है, जो गोल्ड का गनी है गुरुजी, उनको तो आप इनसे जुड़िए। हर एक भी सवाल या जवाब हमारे धीरे 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 मिलता जाएगा और कॉन्फिडेंस है बढ़ता जाएगा। यही मेरी विनती है, कहाँ भी भटकना नहीं है। वो आप जो पैसे हैं वो पैसे गुरुजी ने कभी कभी क्लास में आप वो भी सिखा देते हैं, पैसे क्यों लाना है वो भी सिखा देते हैं। जो सब आपका पैसा कभी पैसा नहीं खर्चा हुआ होता, प्लीज everybody please agree and choose right guru,
this is the golden guru for me, and also to you. Please join me without any doubt. Please join in this course. Everything will be success in your life, and also to give another success. Please, this is my request. क्योंकि मैं इधर उधर भटकता 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 कहीं भी रुका नहीं, सब्जेक्ट नहीं आया, जो गुरुजी के पास आया, शरण में आया, जो धीरे धीरे आप रात में एक बार रात में मैसेज किया तो भी गुरुजी ने रिप्लाई देते हैं। वैसा वो बैकबोन बोलते हैं ना, वो बहुत कॉन्फिडेंस लेके आता है, बातों से नहीं। आप मान के चलिए, आपको ही सही लगता है वो चीज, मेरा कहने से नहीं। आपका विश्वास तो बहुत होना चाहिए। एक ही बार लगते हैं, ये छोटा मोटा नहीं, एक ही बार लग दो, इधर उधर भटकना नहीं है। जैसा ये सही गुरु है, गोल्डन गुरु जी है, गोल्डन का गनी है, जब कितना भी खोदो उसमें गोल्ड ही आएगा। प्लीज, दिस इज माई स्पेशल रिक्वेस्ट, कहाँ भी भटकना नहीं है। आपका पैसा वसूल हो जाएगा इन बिटवीन क्लासेस में। वो गुरुजी भी बोलते हैं, टिप्स बोलते हैं, आपका पैसा कहाँ भी नहीं जाएगा। प्लीज विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपको इंटरेस्ट है सही से, प्लीज ज्वाइन दिस कोर्स इमीडिएटली विदाउट एनी डाउट। दैट्स माय रिक्वेस्ट टू यू। थैंक यू। अच्छा, और किसी का कुछ सवाल है? कुछ सवाल है तो पूछ लीजिएगा, या तो अगर हम लोग जैसा एक 1 आवर का डेमो है तो हम लोग यहीं पर खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो आई विल टेक इट एज नो। आई टेक इट एज नो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यू कैन गेट इन टच विथ मी, आई विल शेयर यू द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट। ठीक है सर, हर हर महादेव। हर हर महादेव।